سجدہ کرو تو ہاتھ یوں رکھو، یہ اللہ ہے، ہاتھ میں بھی لفظ اللہ ہے، دونوں طرف جو ہے یہ ہاتھ رہے گا، یہاں جو ہے ناک اور اس بیچ میں رہے گی کیا تمہاری پیشانی۔ سجدہ کا وہ طریقہ ہے۔ اور جب مر جاؤ گے، ہاں اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ جب تم دوسری رکعت میں اتحیات پڑھنے کے لیے بیٹھو گی یا بیٹھو گے تو تم کو حکم ہے کہ اپنی نگاہ کہاں سینے پہ رکھ اور سر کو جھکائے کہاں گود میں رکھ۔ گود کس کو کہتے ہیں؟ اس کو گود میں رکھ۔ اس کی وجہ کہ قلوب المومنین عرش اللہ، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کے بارگاہ میں جھکے ہو تو نگاہ تشہد میں کہاں رکھو؟ سینے پر، اور اللہ کو یاد کر، اور اس کے بعد اس کی تسبیح اور تحلیل پر، اور سر اس لیے جھکائے گود کی طرف رہو گے کہ اس وقت بھی تم کو یہ یاد آئے گا کہ رب قدیر میرا گود خالی ہے، میری جھولی خالی ہے، اب بھی تو مجھ کو دامن رحمت میں اٹھا لے اور میرے اس خالی دامن کو اپنے رحمت کاملہ سے بھر۔ یہ ہے نماز کا طریقہ۔ اور جب نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو اپنے انگوٹھے کو جہاں تم نے تکبیر باندھی ہے سوچ لو کہ ہم کعبہ شریف میں کھڑے ہو گئے، اور نماز میں پیر ایسے آگے پیچھے گیا، امام محمد فرماتے ہیں کہ جس کے انگوٹھا کھسکا کعبہ کھسکا، کعبہ بھی کھسکا، تو کعبے میں کھڑے ہو گئے۔ اس طرح نماز پڑھو، اور جب تم نماز پڑھو گی اس حالت میں تو پھر ایک بات اور بتا دیتا ہوں، ایک پاکی ظاہری ہے، ایک پاکی باطنی ہے۔ ظاہری پاکی تو کیا کہ آپ نے وضو بنایا، باطنی پاکی ہے کہ دل کو صاف کر لو۔ آج ہم کو مولانا سے کوئی تکلیف ہو گئی، بھوک سے رکھے ہوئے ہیں، ہے نا، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، نہیں اس بھوک سے کو ہٹانا پڑے گا، بھوک سے کو ہٹانا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما المسلمون اخوۃ، کہ ہر مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اور حدیث مصطفیٰ ہے کل مسلم اخوۃ، کہ ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے۔ تو جب مسلمان بھائی ہے تو مسلمان عورت بھی تو اپنے آپس میں بہن اور بھائی ہے، تو ایک دوسرے کے طرف سے بغض کو ہٹا لو، دل کو گندگی سے پاک کر لو، زبان کو چغل خوری، سمجھے، زبان کو جھوٹ چگلی اور جو ہے گندی باتوں سے روکو۔ سرکار نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے، اس سے زبان نکال کر پکڑ لیے، اور صحابہ سے فرمایا کہ صحابیوں یہ کیا ہے؟ ایسا پکڑے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ زبان مبارک ہے، تو سرکار نے فرمایا یہی زبان ہے یہی جنت میں بھی لے جائے گی، اور یہی زبان ہے کہ جہنم میں بھی دھکیلے گا۔ تو زبان میں سب کچھ ہے، تو زبان کو ان چیزوں سے روکو۔ تمہاری محفل ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بیٹھے اس کی غیبت اس کی کھسکت، جس کو کہتے ہیں ہماری عورتیں گھمس، ہے نا، اس کے بارے میں ہے آپ کو کوئی معلوم؟ اگر قرآن پڑھی لکھی ہوئی ہو تو سنو، اور اس ورق پر نظر دوڑاؤ، سورت پر نظر دوڑاؤ، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس شخص کے لیے جو ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس کے لیے خرابی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ویل جہنم میں ایک کنویں کا نام ہے، جب جہنم کی 7 طبق کی آگ بجھ جاتی ہے تو اس کنویں میں آگ باقی رہتی ہے۔ وہ مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ آپ نے ابھی کھانا پکا لیا، چولہا میں آگ چھوڑ دی، اور صبح پھر اس کو ایسے اکٹ کے کیا کرو گی؟ آگ نکالو گی پھر چولہا پھونکنے کے لیے۔ تو جہنم جب سرد ہوتا ہے تو ویل کے آگ سے پھر جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، اسی کنویں میں چغل کھور کو ڈالا جائے گا، اور اس کی گہرائی کتنی ہے؟ ایک بار صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت کی باتیں سن رہے ہیں، ارشاد رسول سن رہے ہیں، کہ اچانک کھٹ کی آواز آئی، سب چوک پڑے کہ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ کہا کہ جہنم میں ایک کنواں ہے جس کا نام ویل ہے، اس کے منہ پر ایک پتھر چھوڑا گیا تھا، 70,000 برس کے بعد وہ نیچے پہنچا،
اس کی کھٹ کی آواز ہے، تو چغل خور کو اسی میں ڈالا جائے گا۔ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی شکایت کرتا ہے، کسی کی برائی اور عیب جوئی کرتا ہے، اگر تم صحیح راستے پر ہو تو اس کو سنو نہیں، بلکہ وہاں سے ہٹ جاؤ، بھاگو وہاں سے، تاکہ اس کی بو تم پر بھی نہ آ جائے۔ چغل خوری اچھی چیز نہیں ہے، اس کے بارے میں ویل ہے، اور ویل کہاں ہے؟ جہنم کا ایک کنواں ہے جو سب سے نیچے طبقے میں ہے، اور 70,000 برس وہ پتھر چلتا رہا تو جا کے نیچے گرا تو کھٹ کی آواز آئی، اس کنویں میں ڈالا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں، اب میں ایک بات یہ بتا رہا ہوں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عید کا دن ہے، مسجد مدینہ منورہ میں عیدگاہ میں صحابہ کرام کے ساتھ عید پڑھنے جا رہے ہیں۔ بے شک۔ تو آپ نہ عید پڑھنے گئے، عورت پر عید، عورت پر بقرعید، عورت پر جمعہ فرض نہیں، واجب نہیں، نہیں۔ اب کہو گی کہ کیوں؟ میں بھی تو انسان ہوں، مجھ پر جمعہ فرض کیوں نہیں؟ مجھ پر عید فرض واجب کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ بقرعید جو ہے واجب کیوں نہیں؟ تو میں بتاؤں گا ابھی، اگر ذہن سے اتر جائے تو یاد دلا دیجئے گا۔ تو سرکار عید پڑھا کے جب وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو تمہیں کی طرح جتھا باندھ کر عورتیں اپنا جو ہے وہ لوگ گفتگو میں مشغول تھی، مگر تمہاری طرح دنیا کی بات نہیں کرتی تھی، وہ لوگ مومنہ تھی، صحابہ تھی، صحابیہ تھی، گفتگو کر رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا یا معاشر النساء انی وریتکنا ان تصدقنا اکثر من اہل النار، کہ اے عورتوں کی جماعتو، تم لوگ میری بات کو یقین جانو کہ میں تم میں سے اکثر کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ اب جہنم کی خوشخبری آقا نامدار دے رہے ہیں، عورتیں گھبرا گئی اور گھبرا کر کہتے ہیں لما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں؟ جبکہ ہم لوگ نماز بھی پڑھتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، حج بھی کرتی ہیں، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، پھر ہم لوگوں میں اکثر جہنم میں کیوں؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تکفر اللعنہ و تکفر الجوز، تکفر اللعنہ و تکفر الجوز، اللہ پر بہتان باندھ کر اور اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے۔ پھر جو ہے عورتیں پوچھتے یا رسول اللہ، اللہ کی نافرمانی اور شوہر کی جو ہے اللہ پر بہتان اور شوہر کی نافرمانی کیسے؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ لا تسب الزمانی، لا تسب الزمانی حدیث قدسی کا ٹکڑا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ لوگوں زمانے کو گالی مت دو، زمانہ میں ہی ہوں۔ اللہ اللہ۔ بارش ہوتی ہے تو خدا کے حکم سے، ہوا چلتی ہے خدا کے حکم سے، دھوپ ہوتی ہے تو خدا کے حکم سے، اس لیے کہ دوسری حدیث ملتی ہے لا تحرک الا باذن اللہ، کوئی چیز بھی دنیا میں حرکت نہیں کرتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی چیز ہلتی بھی نہیں، حتیٰ کہ ایک ذرہ بھی نہیں ہلتا۔ تو آج ہماری ماں بہنوں کا یہ مشغلہ ہے، دھان سوکھنے دے دی اتھار میں، اچانک آندھی آئی یا بارش، وہ ہلہ مچانا شروع کر دیتی ہے، اور ناخواستہ زبان پر جو باتیں لاتی ہے کہ میں کھانو تو سجھے نہیں کرو جی اللہ را تو دکھالی نہیں جاتے، معاذ اللہ، یہ کلام کفر ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے انسان۔ آج سے اس طرح کی زبان پر بات نہیں لانا، مت لانا، اور تکفیر الجوز اور شوہر کی نافرمانی کر کے۔ کون ایسا مرد ہے جو اپنی بیوی کو اپنے اوقات کے مطابق کھانا، کپڑا، لباس، مکان نہ دے؟ دے گا نا؟ سب کوئی دیتا ہے۔ اگر بازار گیا شوہر دیکھا یہ ساڑی بہت اچھی ہے، ہاں یہ گھس کی ٹولیا کے لائق ہے نا، وہ اگر 500 کی ساڑی ہے تو بیچارہ تو لے لیا، اور وہاں سے آیا گھر کہتے جانے من میں تمہارے لیے ایک چیز لایا ہوں، کہا کہ وہ کیا ہے؟
तो निकाल के थैला से दिया, देखिए ऐसी, ये साड़ी हमको पसंद नहीं है। कंडी खोका जब से तोर घोड़ बजी नहीं, तब से मो कभी एखन कपड़ा बढ़िया नहीं मिली ना कभी सूख मिली, है ना। तो ये शोहर की नाफरमानी है। शोहर किसी औरत को अपना दिल भी काट के दे दे, औरत नाफरमानी करेगी, चूंकि वो इबलीस की खालाजाद बहन है। अल्लाह अल्लाह, इबलीस की खालाजाद बहन है, तो वो हमेशा यही कहेगी शोहर की नाफरमानी करती है। और है मेरे मोहतरम माँ बहनों और मेरे नौजवान साथियों, मर्द जन है, बाल बच्चे भी हैं। हदीस पाक में आया है, कोई अपने बच्चे को किसी सबब से अगर पीटता है तो उसके मुंह पे थप्पड़ ना मारे। अगर थप्पड़ मारता भी है और कह दे अल्लाह, तो हाथ खींच ले, हाथ खींच ले। इसी तरह से बीवी को भी मत मारे। सरकार ने फरमाया है, ये हदीस पाक है मिशकात की, कि हर औरत को उसके शौहर के बाएं पसली से पैदा किया है। बेशक। बाएं पसली किधर है? इधर। पैर की हड्डी जिसको बोलते हैं, वो हड्डी टेढ़ी होती है। तो औरत के अंदर अगर 10 खसलतें हैं, उनमें एक अगर खराब हो, इस एक खराब की वजह से उनके साथ ज्यादा बुरा बर्ताव मत करो। अगर ज्यादा सख्ती करोगे तो हड्डी टूट जाएगी, तो तुम्हारा रिश्ता भी टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और ऐ औरत, तुम भी एक बात सुन ले। एक सहाबी थे जिसका नाम अबू दुजाना है, गालिबन अभी भूल रहा हूं मैं, बूढ़ा हो गया हूं ना, मगर अबू दुजाना ही होगा। वो फजर की नमाज में जब आते थे, या पंज वक्त नमाज में, बारगाह रिसालत में यानी मस्जिद नबवी में आए, तो लास्ट में और नमाज पढ़े, सलाम फेरे, फौरन रवाना। कहाँ? घर। हर दिन का मशगला उनका यही था। एक दिन साहबा ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, फलां साहबी आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं, दुआ में शामिल भी नहीं। जबकि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, दुआ मुख्य इबादत, कि दुआ जो है सारी इबादतों का जो है मगज है। आपके दिमाग में मगज नहीं तो आप पागल कहलाएंगे, इधर उधर फिरेंगे। तो इसी तरह अगर इबादत किए और दुआ नहीं मांगे तो वो भी वैसी है। तो हुजूर वो आते हैं और फौरन चले जाते हैं। कहा कि जब वो कल आए तो मस्जिद नबवी का फाटक बंद कर देना, उसको रोक लेना। मस्जिद नबवी के फाटक को बंद कर दिया दूसरे दिन सवेरे। और जब सवेरे बंद कर दिए, कान खोल कर सुनो, गपशप मत करो, तुम्हारी बात कर रहा हूं मैं फरमाइश के मुताबिक जी। तो फाटक बंद कर दिए। नमाज से सरकार फारिग हुए, सारे सहाबी फारिग हुए, दुआ मांगी गई, लेकिन वो सहाबी छटपट कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, कहे फला, तुम इतनी जल्दी जो आते हो, नमाज पढ़ के भागते हो, क्या वजह है? दुआ में शामिल नहीं, देर नहीं करते हो? कहा कि हुजूर मेरे साथ मजबूरी है। यह क्या मजबूरी है? कहा कि बस हुजूर यही एक चादर है जिसको पहन के मैं नमाज पढ़ने आया हूँ, और घर में मैं 2 गड्ढा खोद के रखा हूँ। एक गड्ढे में मेरी बीवी रहती है, गड्ढे में मैं। जब मैं नमाज से फारिग होकर घर पहुंचता हूँ तो गड्ढे में उतर जाता हूँ, अपना कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, वो नमाज अदा करती है। हुजूर अगर मैं यहाँ देर से रहूं तो नमाज का वक्त निकल जाएगा, मेरी बीवी की नमाज कज़ा हो जाएगी। तो कितना गरीब होगा। सरकार ने फरमाया कि लोगों इसकी मदद करो, दामे दिरहमे कदम सुकूने, कोई कपड़ा दिया, कोई रुपया दिया, कोई कुछ दिया, कोई कुछ दिया, पोटली बन गई। मगर नमाज में तो ताखिर हुई। बीवी इंतजार कर रही है कि कहाँ आया, नमाज का वक्त जा रहा है। जब वो पहुंचे, कहा कि इतनी ताखिर आपने क्यों की? कहा कि उसकी वजह यह है, वो सामान पेश किए। तो वो औरत का जुमला सुने, उसकी बात सुनती हो, क्या कहती है? काश ऐ मेरे सरताज, सरताज कहते हैं शोहर को, ऐ मेरे सरताज, अगर रब्बे कदीर मुझको आपकी जगह में और आपको मेरी जगह में अगर पैदा करता, यानी आपको औरत बनाता, मुझको मर्द बनाता, तो मैं आपको तलाक दे देता। अल्लाह। आपने घर की शिकायत इतने लोगों के सामने क्यों की? ये पर्दे की बात थी, पर्दे में रहती। लेकिन औरत हो, तुम अपने शोहर की हजारों शिकायतें कर रही है।
उससे भी बचो। और ये दुनिया किसी के साथ नहीं है। अब दुनिया सिज्जिलुम मिनल मोमिनीन व राहतुल लिल काफिरीन, दुनिया मुसलमानों के लिए जहन्नम है और काफिरों के लिए जन्नत है। यहाँ से जल्दी भागो, जहां से आए हो वहीं जाना पड़ेगा। एक मोहित का चाल होता है, यहाँ से आए हो फिर घूम के वहीं जाना पड़ेगा। बेशक ये मोहित का चाल है। एक नुक्ता यहाँ रख दो, लकीर खींचो, फिर घूम के वो गोलाई में वहीं आएगा। तुम जहां से आए हो, हम जहां से आए हैं वहीं जाना है। ये दौलत तुम्हारी काम की नहीं। आंख बंद करो, कुछ नजर आता? तुम्हारे दादा गए, बाप गए, परदादा गए, लकड़दादा गए। क्या ये दुनिया, ये दौलत, ये औलाद उनके साथ गई है? कभी नहीं। अकेले तन्हा उस कब्र में रहना पड़ेगा जहां तुम्हारा कोई हामी नहीं होगा। अगर हामी होगा तो खुदा होगा और खुदा का रसूल होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंधेरा कोठरी और वो जो है फरिश्तों का हैबत और जलाल वाली जो है आंखें, जिसके सर के बाल यहाँ तक होंगे, जिनकी आंखें बड़े बड़े, वो देख का जो है तांबा का देख जो होता है, उस देख के बराबर आंखें होंगी। 8 गज का नाखून होगा और इतना बड़ा बड़ा दांत होगा। उस शक्ल में तुम्हारे पास जब वो आएंगे, उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी? वहां का ख्याल किए हो? उस वक्त क्या होगा? क्या करोगी? तुम्हारे कमर से लेके यहाँ तक सिल कर दिया जाएगा। कुछ भी ताकत नहीं पैर में कि तुम उठ के बैठ सको, बैठाया जाएगा। जब सवालों जवाब होगा, जब सवालों जवाब होगा, उस वक्त क्या करोगे? तुम ये सुन लो, अगर उस वक्त पैर में ताकत होती उसकी और हाथों में, जब मुनकर नकीर तशरीफ लाएंगे तो उसकी हैबत से कब्र की 80 मन मट्टी को उठाकर फेंक देती, या मर्द होता तो फेंक देगा और उसके बाद कब्र से निकल के भाग जाता। वो सख्ती का आलम है कब्र का। तुम वहां से डरो। अगर तुम मौत में बच गए तो कब्र में बचोगी, और अगर तुम कब्र में बच गए तो मैदान हश्र में भी बचोगी। बचने का जरिया क्या है? नमाज है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि कब्र, दुनिया में जो नमाजी होता है, सच्चे दिल से दिखाओगी नमाज नहीं, तो उसका चेहरा दुनिया में भी रोशन होता है। दुनिया वाले देख कर कहते हैं कि आदमी वली अल्लाह है, नमाजी है। बेशक और जब तुम्हें कब्र में जो है मरने के बाद हमें या तुम्हें डाला जाएगा, 5 जाएंगे, 4 वापस आ जाएंगे, तन्हा एक रहेगा, वो तो मुर्दा ही होगा। शेर नहीं सुनाता हूं मैं, शायर भी नहीं हूं। 5 जाएंगे, 4 आ जाएंगे और 1 रह जाएंगे, वो मुर्दा ही होगा, है ना? तो डाल कर तो आ जाएगा, कोई साथ नहीं होगा। तो अगर तुम नमाजी हो तो कब्र भी तुम्हारी नमाज के असर से कब्र भी रोशन होगी। बेशक कब्र में रोशनी होगी, उजाला होगा। और अल्लाह के हबीब भी तशरीफ लाएंगे, जिसको अजमल सुल्तानपुरी ने उस हदीस को इस नज़म में जो है, इस नज़म में पिरोया है। लोग कहते हैं कि कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होगा। अल्लाह लोग कहते हैं कि कब्र में अंधेरा ही अंधेरा होगा। हकीकत है कि अंधेरा होगा। ऊपर से बंद, साइड से बंद, नीचे से बंद, तो अंधेरा ही अंधेरा होगा। जब मेरे आका वहां होंगे तो उजाला ही उजाला होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब मेरे आका वहां होंगे तो उजाला ही उजाला होगा। तो ये कब होगा? जब तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अहकाम पर चलोगे, अल्लाह के अहकाम पर चलोगे, उसके दामन को पकड़ते रहोगे और अल्लाह अल्लाह तुम्हारी ज़बान पर होगी, और जो है रसूलुल्लाह का नाम तुम्हारे ज़बान पर होगा, और अल्लाह रसूल का जो हुक्म है उसको अमल में लाओगे, तभी तो ये बात होगी। कौन कहता है कि कब्र में अंधेरा होगा? जब मेरे आका होंगे तो उजाला ही उजाला होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए बात? और दूसरी बात यह है, ऐ औरतों कान खोल कर सुनो, ऐ मर्दों तुम भी सुनो। एक औरत 3 मर्दे को जहन्नम में ले जाएगी। अल्लाह अल्लाह। कितने को? 3 को। पहला बाप, दूसरा भाई, तीसरा शौहर। वो कैसे ले जाए?
जाएगी, ये सुनो कैसे ले जाएगी। बाप के गोद में उसने जो है बाप के सामने पैदा हुई, उसके गोद में पली और पुसी, परवान चढ़ी, लेकिन बाप ने तरबियत न दी। बाप गुजर गया, भाई ने पाला पूसा, उसने भी तरबियत न दी। अब शहर के अंदर आ गई वो भी उसको तरबियत नहीं दे रही है, तो वो औरत बेबाक होगी, वो औरत बेबाक होगी। चलो आज कन्हैया मार्केट जाएंगे, शहर गुलाम है, बीवी आगे आगे शहर पीछे पीछे, कहाँ कन्हैया मार्केट। आज जो रौनिया उड़ीस जाएंगे, शहर चलो, बीवी आगे शहर पीछे, बैरिया ओर से जाएंगे, बीवी आगे शहर पीछे, ये गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि कुरान फरमाता है, क्या फरमा रहा है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, कि मर्द औरत पर हाकिम है और हाकिम के हुक्म को तमाम महकम को मानना पड़ता है। बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन आज औरत हाकिम बन गई है और मर्द महकुम बन गया। क्या तो ये सारे कमियां जो है, जितनी भी कमी है, ये सब हम मर्दों की है जी। सुनो एक बात मैं बताता हूं, या खुदा बान खने अल्लाह को जज़ाए खैर दे, आमीन 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 सुन्ना आमीन। ये सारी कमियां हम मर्दों की है। कुरान कहता है अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसा, मर्द औरत पर हाकिम है, तो ऐ औरतों तुम महकुम हो, तो औरत की जो है मर्द की बातों पर चलो। और दूसरी बात सुनो, हाफिज़ातुल लिल गैब उसी जगह आया है कि औरत अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाली, बेशक हिफाजत करने वाली, अपने तन धन की वो जो है क्या है, हिफाजत करने वाली है। तो अब सवाल ये पैदा होता है, किसी औरत को ये हुक्म नहीं है कि वो लिपस्टिक लगाए, जबकि जो सूअर का खून होता है, अलता में सूअर का खून होता है। क्या मेरी बात अच्छी लगती है? जी बिल्कुल है ना? और पाउडर लगाती है, निखार करती है। तो सुनो, ये जीनत हर उस औरत के लिए है जो शादीशुदा है, वो भी कहाँ अपने शौहर को दिखाने के लिए, गैर को नहीं। औरत के माने पर्दा और सतर के माने छुपाना। तो औरत और एक है सतरे औरत, तो औरत खुद पर्दे में रहे, और सतरे औरत इसलिए कहते हैं कि अगर कोई लंगा रहे अच्छा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। मर्दे का सतरा औरत यहाँ से लेकर नाक तक, और औरत का सतरा औरत शरीयत मुतहरा में यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन आजकल ये फैशन लगा ली है औरतें, वो भटियान सब कहती है ना कि बड़े जन जो है उसका जो है सारा जिस्म दिखाया, वो दिखा देगी मगर चेहरा ना दिखाएगी। तो वो लोग आजकल ये फैशन बना, इस तरह से आंख निकाल के तब वो आएगी सामने में, इधर चाहे कुछ भी हो, ये फैशन है ना। इसलिए कि चेहरा तो शरीयत मुतहरा में ये फर्ज ही नहीं है ढाकने का, है मौलाना, चेहरा ढाकने का हुक्म है। लेकिन इख्तलाफ दुनिया या दुनिया की हालात जो बदल चुकी है या बदल डाले हैं, इस बिना पर आज शरीयत कहती है कि चेहरे को भी ढांक लो, तो उसके लिए बुर्का है जिसको निकाब कहते हैं, जिसको निकाब कहते हैं, उसको पहन के चल। औरतों तुम जानती हो कि जब घर से निकलती हो अपने शौहर को लेके, कन्हैया जाती हो, बाप को लेके, भाई को लेके, शौहर को लेके, हर एक कदम पर तुम्हारा गुनाह अजीम लिखा जाता है। और जब वहां से लौटोगी वो भी लिखा जाता है। इसका जवाब क़यामत के दिन क्या दोगी? तुम्हारे ऊपर जो है मार्केट नहीं है, तुम्हारे लिए बाजार नहीं है। औरत अपने शौहर की अमानत है, उसके घर की जीनत है, उनके बाल बच्चों का जो वो निगहबान है, उसकी दौलत का निगहबान है। तुम्हारे लिए बाजार नहीं, तुम्हारे लिए उर्स नहीं कि तुम उर्स में जाओ और जाके पीर साहब के ज़ियारत करो और सवाब लूटो। ये गलत है। जितनी औरतें आज मजार में जाती है वो गुनाह की पोटली नहीं बल्कि गुनाह का बोरा लेकर आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये भी सुन लो, जितनी औरतें हज को जाती है, हज के बाद बारगाह रिसालत में हाजिरी देना,
उसके लिए वाजिब है। मेरे आका फरमाते हैं मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि हज के बाद जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो वहाँ हाजिरी देना है बारगाह रिसालत में, और तुम हाजिरी देने जाते हो हाँ मज़ारों पर। आज हजारों मज़ारें ऐसी है जो नकली है, असली नहीं। जी बिल्कुल। और जो मज़ार की हकीकत मालूम न हो कि कौन पीर लेटे हैं कौन क्या है, वहाँ चादर पोशी होती है, और उसी जगह जो क्या करते हैं फातिहा पढ़ते हो। अब न जाने गधा लेटा हुआ है कि सुअर लेटा हुआ है कि उड़ी का भीट है, क्या है नहीं है उसकी तहकीक नहीं। तो ऐसे मज़ार पर चादर चढ़ाना भी हराम है, और वहाँ उर्स लगाना भी नाजायज है। जी बिल्कुल। और तुम कहते हो कि हम जाएंगे तो पीर साहब ज्यादा सुनेगा, मेरी दुआ जो कबूल होगी, नहीं नहीं, ये उल्टी बात है। जो नहो पढ़े हैं उनसे पूछो, या हर्फ नदा करीब और बैद दोनों के लिए आता है, या हर्फ नदा करीब और बैद दोनों के लिए आता है। तुम यहाँ से कहो या खाजा, उसको भी सुनते हैं, उसके मज़ार पे जाके कहोगे तो वो वहां भी सुनते हैं। या रसूल अल्लाह, अजमेरों की जमीन पर रहते अगर करती हो तो वहाँ मदीना में मुस्तफ़ा सुन रहे हैं, और अगर मदीना में जाके कहोगे तो वहाँ भी सुनते हैं। जिस तरह आप लोग सलातो सलाम में सुनते हैं ना सुबह, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। चाहे कहीं भी हो, मशरिक में हो मगरिब में हो, जहाँ से भी या रसूल अल्लाह कहोगे या कहोगी, सबको सरकार सुनते हैं। तो इसी तरह अगर तुम्हारी कोई मन्नत है सिद्ध के दिल से यहाँ मान लो, और मानने के बाद अगर तुमने चादर मानी है, तुम्हारी मुराद अगर पूरी हो गई, तो तुम अपने शोहर को भेजो कि मैंने रोनिया मज़ार पर जो है चादर मनती की थी, ले जाके देख आओ। वो वहां से भी देखते हैं। पीर उसको कहते हैं जो रोशन ज़मीर हो। वो जिस तरह दुनिया में देखते हैं उस तरह कब्र से भी देखते हैं, उस तरह जो है वो जो आलम अरवाह से भी देख रहे हैं। तुमको जाने की जरूरत नहीं है। और सुन, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला तक़रबुज़ ज़िना, ला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब मत जाओ। इन्नहु फाहिशतुन व साअ सबीला। यही है ना? हो सकता है कहीं छूट जाए, आप लोग हाफिज़ कुरान है, जरा इस्लाह कर दीजिएगा कि ज़िना के करीब मत जा। बेशक वो खुली हुई बेहयाई है और वो बुरा रास्ता है। साअ सबीला। अब्दुल्लाह अहमद जीवन अलैहिर्रहमा नूरुल अज़वार में ला तक़रबुज़ ज़िना, अमर का सहना है ना, ज़िना के करीब मत जा। अमर दो तरह का होता है, अमर बिल वजूब, एक अमर बिल इस्तेहबाब। तो खुदा ने मना फरमाया मत जाओ। तो अब क्या ज़िना के औरत और मर्द दोनों के इख्तिलात ही से ज़िना होता है? बेशक नहीं, आँख से भी ज़िना है, कान से भी ज़िना है, समझे, मुंह से भी ज़िना है, जिस्म से भी ज़िना है, हाथ से भी ज़िना है, पैर से भी ज़िना है। अगर इन ज़िनाओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर वह ज़िना का मुजस्समा बन जाएगा। बेशक जो चीज आर्जी थी वो हुक्म में आ गई। हुक्म में आई कि नहीं आई? अगर किसी गैर ने आपके जिस्म पर हाथ दिया तो हाथ का ज़िना है, और किसी मर्द ने आप पर बुरी नजर से निगाह डाली तो आंख की ज़िना है। बेशक अगर ज़बान से फहस मजाक की तो वो ज़बान की जो है क्या ज़िना है। कान से उसकी तुमने जो बात सुनी फहस बात, वो तुम्हारी कान की ज़िना है। और पैर से तुम अगर किसी से गुफ्तगू करने के लिए गए किसी यार से, तो वो पैर के लिए ज़िना है। और ये सारे को इकट्ठा करके जो है एक दिन हो सकता है कि असल ज़िना हो जाए। अल्लाह अल्लाह असल ज़िना हो जाए। जैसे आजकल मोबाइल के दुनिया में हमको भी कभी कभी आता है मोबाइल में 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे रात खून। अल्लाह अल्लाह, जब मेरी आवाज सुनता है कौन, पट से काट देता है ना। ये क्या है? ये खून नहीं, ये दून है। ये खून नहीं दून है। इस तरह से गैर लड़के को तुम लोग यानी औरतें अगर अपनाना चाहती है तो सुन लो,
यहाँ बहुत मौलाना है। अलाया अय्युहस्साक़ी अदीर का सव्व नाविल हा कि इसका आसान मुदव्वल वले उस्ताद मुश्किल हा। इसके करना तो आसान है मगर उसको निभाना मुश्किल है। मुश्किल है, बेशक। एक लड़की मान के चलो धनगवा की है, एक लड़का बेड़ों का है, दोनों में कभी आपस में उन लोगों की बात नहीं हुई। अब रिश्ता जोड़ा गया, वो दुल्हन यहाँ आई, कहा बेरो, तो रब्बे कदीर उन दोनों के दरमियान मोहब्बत कूट कर भर देता है कि बीवी शौहर के बगैर, शौहर बीवी के बगैर रह नहीं सकता। और ये मोहब्बत हमेशा दायम रहता है उसकी जिंदगी भर। अगर शौहर पहले मर जाए तो बीवी रोती है, बीवी मर जाए तो शौहर रोता है। अल्लाह। इसलिए तो उसका जोड़ा टूट गया। लेकिन वो मोहब्बत जो मोबाइल पर हेलो कुंदर गेलो, ये है ना हेलो कुंदर गेलो, इस तरह की मोहब्बत किसी गैर से कर लिया, उस लड़के को अपना लिया तो उसकी आधी मोहब्बत उसी में बन गई, और आधी जो बची तो शादी के बाद उस लड़का और लड़की की जिंदगी में दरार आ जाता है कि बीवी शौहर से, शौहर बीवी से हमेशा लड़ते रहता है, बेशक। झगड़ा होते रहता है, हत्ता के खुला का मसला आ जाता है, तलाक का मसला आ जाता है। तो ऐ औरतों, अल्लाह तबारक व तआला वो अरहमुर राहिमीन है। इन्नमा खलकनाकुम अज़वाजा, कि हर मर्द के लिए उसका जोड़ा पैदा किया, हर औरत के लिए रब ने मर्द पैदा किया है। बेशक। जिसको हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने कहा क्या है, जूटा, जिसको कहते हैं जूटा। और मर्द के बाएं पसली से जिस लड़की की जो है रिश्ता होगी, शादी होगी, उसी से होगी, गैर से नहीं होगी। लेकिन सब्र तहम्मुल से रहो, बेशक। खूनबाजी मत कर, माशरा बिगड़ेगा। आज तुम करोगे कल तुम्हारी बहन करेगी, परसों तुम्हारी भाई बेटी करेगी, तरसों जो तुम्हारी भतीजी करेगी। माशरा बिगड़ जाएगा, अपने को संभाल के रख। और जहन्नम की उस आग से डर जिस आग का ईंधन इंसान होगा और पत्थर होंगे, अल्लाह। उस आग से लड़ो। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, यहीं तक महदूद नहीं, पीर अपनी जगह है, तुम अपनी जगह हो। अपने मकासिद के लिए यहीं से दुआ मांगो। अगर वो सही मानी में पीर है तो वहीं से वो सुन लेगा और वो तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए कि नियत नाम है दिल के इरादे का, नियत नाम है दिल के इरादे का। तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम जाती हो मार्केट में बन सवर के, आजकल के फैशन में तो यही तो कुर्ता है, जी जी। ये जिस्म तेरा लंगा, चेहरा लंगा, न जाने जिस्म में क्या क्या लगाती हो, फिर उसके बाद चलती हो। हजारों का मजमा होता है, कुछ लफे भी तुम लोगों के पीछे घूमते हैं। कोई जिस्म में घस्सा लगाता है तो कोई धक्का मारता है, जी बेशक। तुम भी हंसती हो, वो भी हंसता है, ये याराना होता है। लेकिन सुन, तुम्हारा जिस्म का क्या हाल होगा जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्श आज़म पर तशरीफ ले गए और वहां की वापसी पर जब आप मदीना तैयबा मक्का मुअज़्ज़मा में उतरे, तो कुछ दिनों के मक्का ही से ना मेराज हुआ था। जी। जब हजरत फातिमा तो ज़हरा बाप के यहाँ जाती है, फातिमा छोटी बेटी है। ये भी एक खुसूसियात है कि जब मेरे रसूल पैदा हुए थे तो 4 औरतें आसमान से उतरी थी मदद के लिए। जब फातिमा पैदा हो रही थी तो 5 औरतें उतरी थी जो है फातिमा की माँ के जो है मदद के लिए। वही फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब बाप के घर जाती है, करीब ही तो घर, जब जाती है तो देख रही है वो क्या कि रसूल कायनात ज़ारो कतार रो रहे हैं। तो बेटी का दिल पिघल गया, अब्बा जान क्या तकलीफ हुई आपको, क्या आप रो रहे हैं? तो हजरत फातिमा तो ज़हरा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फातिमा से कि बेटी मुझे कोई तकलीफ नहीं, अगर मुझे तकलीफ है तो अपनी गमखार उम्मत की है, गुनहगार उम्मत की है। कहा कि वो क्या है? कहा कि जब मैं जन्नत और जहन्नम का सैर किया था शब मेराज में, तो मैंने एक औरत को देखा जहन्नम के अंदर के पैर उसका जो है ऊपर है, जहन्नम के बीम में लटका हुआ, अल्लाह अल्लाह। और सर नीचे है, चीखती चिल्लाती है।
پھر اس کے بعد جب اور آگے بڑھا تو ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ سر کے بال سے وہ بیم میں لٹک رہی ہے، پیر اس کا جو ہے آگ کی طرف ہے، آگ جلا رہی ہے۔ اللہ اللہ ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کی زبان اس طرح سے گردن میں لپیٹی ہوئی ہے،